ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 10 جون 2020 مطابق 17 شوال المکرم کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اودھ نامہ نے صفحے اول پر پہلی خبر میں نمایاں طور سے 69,000 ٹیچر تقرری معاملے کو جگہ دی ہے، جس کی تفصیل کے مطابق سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں 37,339 آسامیوں پر اسسٹنٹ اساتذہ بھرتی روکنے کے لیے منگل کو حکم جاری کیا۔ ان عہدوں پر عدالت کے اگلے حکم تک تقرری پر پابندی رہے گی۔ عدالت نے معاملے کی سماعت کے لیے 14 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اتر پردیش کے شکشا متروں نے گزشتہ دنوں ایک مرتبہ پھر عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور 37,339 عہدوں پر بھرتی روکنے کی اپیل کی تھی۔ وہیں دوسری جانب پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیسک ایجوکیشن وزیر ستیش چندر دیویدی نے کہا ہے کہ تقرری کا عمل ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد ملتوی ہے اور معاملے کی جانچ پولیس کے اسپیشل ٹاسک فورس یعنی STF کو سونپی گئی ہے، لیکن کچھ لوگ ٹیچر تقرری کو روکنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ مزدوروں کو 15 دن کے اندر ان کے مطلوبہ مقامات پر بھیجا جائے۔ سپریم کورٹ کے اس بیان سے مہاجر مزدوروں کو بڑی راحت ملی ہے، جس کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس اشوک بھوشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مہاجر مزدوروں کی حالت زار پر از خود نوٹس والی درخواست پر اپنا حکم سناتے ہوئے کہا کہ مہاجر مزدوروں کو آج سے 15 دن کے اندر اپنے گاؤں یا ان کے مطلوبہ مقام پر بھیجنے کا مکمل انتظام کیا جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ریاستی حکومتوں کی درخواست پر ریلوے 24 گھنٹوں کے شرمک اسپیشل ٹرین فراہم کرائے گی۔ بینچ نے اپنے حکم میں واضح کیا ہے کہ اپنے گھروں کو جانے کی کوشش میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے مزدوروں کے خلاف دائر مقدمات واپس لیے جائیں گے۔ بینچ نے تمام مہاجر مزدوروں کی شناخت کر کے تفصیلی جانکاری والا ڈیٹا تیار کرنے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ ریاستی حکومتیں اور مرکز کے زیر کنٹرول ریاستیں واپس لوٹنے والے مزدوروں کے لیے ملازمت کے منصوبے تیار کریں گی اور اس کی جانکاری بھی دیں گی۔ سسودیا کے بیان سے دہلی میں دہشت۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے خوفزدہ بیان اس وقت دیا جب وہ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ میٹنگ کر کے واپس آئے تھے۔ انہوں نے کہا دہلی میں جس طرح سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں، اگر ایسے بڑھتے رہے تو 15 جولائی تک 33,000 بیڈ کی ضرورت پڑے گی اور 31 جولائی تک کورونا کے مریضوں کے لیے 80,000 بیڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 15 جولائی تک دہلی کورونا انفیکشن کے 2.5 لاکھ کیسز ہونے کے امکان ہے اور یہی رفتار رہی تو 31 جولائی تک کیسز کی تعداد 5.5 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ بتاتے چلے کورونا سے گزشتہ 24 گھنٹے میں ریکارڈ 331 ہلاکتیں اور 9,987 نئے معاملے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 2,66,598 ہو گئی ہے۔ ایک ہی وقت میں 25 ضلع میں نوکری کرنے والی انامکا شکلا کا بیان صفحے کے نصف اول حصے میں نمایاں ہے، جس نے پورا معاملہ ہی الٹ دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق گونڈا کی رہنے والی انامکا شکلا نے کسی بھی ضلع میں نوکری نہ کرنے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے تعلیمی ریکارڈوں کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو لے کر شہر کوتوالی میں آن لائن FIR درج کرائی جا چکی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے ذریعے بینکوں کو دی جانے والی ہدایات بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس میں انہوں نے بینکوں کے مینیجنگ ڈائریکٹروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ بینکوں کو آتم نربھر بھارت اسکیم کے تحت قرض منظور کرنے اور اہل MSME تک پہنچ یقینی بنانی چاہیے۔ وزیر خزانہ نے اس اسکیم کے تحت اب تک سرکاری بینکوں کے ذریعے 20,000 کروڑ روپے کے قرض منظور کیے جانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکیم کا فارم آسان ہونا چاہیے۔ شائع اہم خبروں کے علاوہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ نگیٹو، جبکہ حالیہ میں کانگریس سے BJP میں شامل ہوئے سندھیا اور ان کی ماں علیل کورونا انفیکشن کا اندیشہ۔ پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار تیسرے دن اضافہ۔ دہلی میں پٹرول 1.74 لیٹر اور ڈیزل 1.78 لیٹر مہنگا۔ اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے درمیان ٹویٹر پر شاعری کے ذریعے سے جاری حملے کے درمیان مسٹر گاندھی نے منگل کو طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ شاعری ختم ہو گئی ہو تو وزیر دفاع ملک کو بتائیں کہ کیا چین نے ہندوستان کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اطلاعات بھی قابل مشاہدہ ہیں۔ عالمی صفحے پر پہلی خبر کی صورت میں رواں سال حج کی اہم اطلاع شائع ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے سعودی عرب کی حکومت نے ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے رواں برس حج میں عازمین کی تعداد کو بڑے پیمانے پر کم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ حکام رواں برس صرف علامتی تعداد کو حج کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ بزرگوں پر پابندی اور صحت کے حوالے سے سختی کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق بعض حکام کا مشورہ ہے کہ حج کو منسوخ کر دیا جائے، جبکہ بعض حلقوں کی جانب سے تمام ممالک کو معمول کے کوٹے سے 20% کی اجازت دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تاہم حج امور کے ترجمان یا سرکاری میڈیا کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
جرمنی میں مسلمانوں پر حملہ ناکام بنانے کی خبر کی تفصیل میں اخبار بتاتا ہے، جرمنی کی پولیس نے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد میں مسلمانوں پر ہونے والے حملے سے متاثر دائیں بازو کے سخت گیر نظریاتی 21 سالہ ملزم کو مبینہ طور پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے خدشے پر گرفتار کر لیا ہے۔ شمالی شہر ہلدیشیم سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ ملزم نے انٹرنیٹ میں ایک بیان میں حملے سے متعلق اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔ سرکاری پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم دنیا بھر میں میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مخصوص وقت میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسی صفحے پر ایک خصوصی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کورونا کے امکانی خدشات کا جائزہ لینے کے بعد محققین نے بتایا کہ امپیریل کالج لندن کے سائنسدانوں نے 11 ممالک میں لاک ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیے گئے ماڈلنگ مطالعے میں کہا کہ مارچ میں اٹھائے گئے بیشتر سخت اقدامات کافی پر اثر رہے ہیں اور ان سے مئی کے اوائل میں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 1 سے کم کرنے میں مدد ملی۔ محققین نے اپنے ماڈل میں لاک ڈاؤن کے اقدامات نہ اٹھائے جانے کی صورت میں وبا سے اموات کے جو امکانات ظاہر کیے تھے، اگر اس کا موازنہ سامنے آنے والی اموات کی تعداد سے کیا جائے تو وائرس سے تقریباً 31 لاکھ کم اموات واقع ہوئی ہیں۔ شہزادہ اینڈریو کے حوالے سے شائع خبر کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے، ملکہ برطانیہ کے دوسرے بڑے بیٹے شہزادہ اینڈریو کے وکلاء نے امریکی محکمہ انصاف کے عہدیداروں کے ان الزامات کو مسترد قرار دیا ہے جن میں امریکی حکام نے شہزادے پر تفتیش کے لیے تعاون نہ کرنے کے الزامات عائد کیے تھے۔ عالمی صفحے پر صدر اشرف غنی اور اعلیٰ امن کونسل کے سربراہ عبداللہ کے درمیان اختلافات کی خبر بھی موجود ہے۔ بتاتے چلے کہ اختلافات عبدالرشید کو ملٹری رینک دینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ صفحے کے ذیلی حصے میں شائع خبر اس طرح ہے، پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار 1% تک سکڑنے کا خدشہ، سعودی عرب میں دوسرے مرحلے میں مزید 5 ہوائی اڈوں کا آپریشن بحال، اور ایران کا بیان بھی موجود ہے جس میں اس نے مذاکرات کے لیے امریکی پیشکش کو دکھاوا قرار دیا ہے۔ اودھ نامہ نے 10 جون کے ریاستی صفحے پر پہلی خبر کی شکل میں وزیر اعلیٰ اتر پردیش کی ان ہدایات کو جگہ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، فی الحال نافذ ان لاک بندوبست کے تحت فراہم کی جانے والی رعایات کے دوران مکمل احتیاط برتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ افراد کا مناسب علاج بھی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ریاستی حکومت کے ذریعے اٹھائے گئے اقدامات نے لوگوں پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا پر قابو پانے، اس کے علاج معالجے کے لیے طبی نظام کو مزید مستحکم بنانے اور معاشرے کے غریب اور کمزور طبقات کو راحت فراہم کرنے کے لیے کیے گئے انتظامات کے بہتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 4 ڈویژن بستی، گورکھپور، اعظم گڑھ اور وارانسی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست کے سبھی علاقوں میں کام ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں ریاست کی حالت بہتر ہے۔ دوسری بڑی خبر میں اونیش کمار اوستھی کا بیان، حکومت ڈیجیٹل لین دین کو پروموٹ کرے گی، موجود ہے۔ تفصیل میں اخبار لکھتا ہے، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور اطلاعات مسٹر اونیش کمار اوستھی نے لوک بھون واقع میڈیا سینٹر میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرانے کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی اقتصادی پیکج کا پورا فائدہ لینے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کی جائے۔ اس پیکج کے توسط سے حکومت ہند کے ذریعے پٹری دکانداروں کو قرض فراہم کرانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس میں وقت سے قرض کی ادائیگی کرنے پر سبسڈی کے بندوبست کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل پیمنٹ کو پروموٹ کرنے کا بھی نظام ہے۔ انہوں نے کارپینٹر، سیلون وغیرہ سبھی زمرے کے افراد کو قرض دلانے کے ضمن میں لائحہ عمل تیار کر اسے نافذ کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ سیلاب سے متعلق تمام کام 30 جون 2020 تک مکمل کریں۔ یہ حکم اتر پردیش کے وزیر جل کشتی ڈاکٹر مہیندر سنگھ کا ہے جو انہوں نے اتر پردیش کے سیلاب سے بے حد حساس اضلاع کے پیش نظر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں سیتاپور اور بارہ بنکی ضلع سیلاب کے نظریے سے بے حد حساس ہے، اس لیے سیلاب سے بچاؤ سے متعلق تمام تر تیاریاں قبل از وقت مکمل کر لی جائیں تاکہ فصلوں اور جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ضلع اسپتال کے چوکھٹ پر 3 گھنٹے تڑپتا رہا مریض۔ یہ انسانیت سوز واقعہ سدھارتھ نگر کے ایک ضلع اسپتال میں پیش آیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے 3 گھنٹے سے تڑپ رہے مریض کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد ڈاکٹروں نے صرف خانہ پوری کرتے ہوئے اسے میڈیکل کالج ریفر کر دیا جہاں جاتے ہوئے مریض کی موت ہو گئی۔ مولانا سید ارشد رشیدی کا بیان صفحے کے بالائی حصے پر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسجد کے لیے جاری گائیڈ لائن ناقابل عمل ہے، اس لیے سرکار سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ علماء کرام سے مشورہ کر کے ایسی گائیڈ لائن مرتب کرے جس پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کیا جا سکتا ہو، اور مسلمانوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ جب تک گائیڈ لائن پر پورے طور سے عمل ممکن نہ ہو اس وقت تک عوام کے لیے مساجد کے دروازوں کو نہ کھولیں۔ ان اہم خبروں کے علاوہ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کے ذریعے دی گئی اہم اطلاع بھی شامل اشاعت ہے جس میں انہوں نے کہا ہے 27 جون کو یو پی بورڈ کے نتائج کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اودھ نامہ کے اپنا وطن صفحے کی پہلی سرخی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا اعلان ہے
कि बीजेपी सोनार बंगला के ख्वाब की ताबीर करेगी। खबर की तफसील के मुताबिक मगरबी बंगाल में पहली वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज ममता हुकूमत की सख्त तनकीद की और कहा कि पूरे मुल्क में जमहूरी रवायात मजबूत हो रही है, मगर मगरबी बंगाल वाहिद रियासत है जहां सियासी तशद्दुद के वाकयात में कमी आने के बजाय इजाफा होता जा रहा है और यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की तंग सियासत की वजह से बंगाल के किसानों को मरकज के मंसूबे से महरूम किया जा रहा है। पेशानी की बाईं जानिब कांग्रेस का बयान सुर्खी में है जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के वजीर आला को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। खबर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और शिमला देहात से रुकन असेंबली विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि महकमा सेहत में हुई मुबैना रिश्वततानी के सिलसिले में वायरल ऑडियो की अगर सही ढंग से तफ्तीश न हुई तो पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मिस्टर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला से इस्तीफा देने के मुतालबे को दोहराया। कंटेनमेंट जोन में रहने वाली 30% आबादी कोरोना इन्फेक्शन से खुद ठीक हो गई। इस सुर्खी के तहत खबर में बताया गया है कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने पाया है कि कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां पहले से कोरोना केसेस हैं, यहां हर तीसरा शख्स कोरोना इन्फेक्शन का शिकार है, लेकिन इन्फेक्शन का पता चले बगैर ही मरीज ठीक भी हो गए हैं। बस स्टैंड पर लंबी लंबी कतारें, मुआशरती फासले को बरकरार रखना मुश्किल। कोलकाता के हवाले से इस खबर में है कि आज से सरकारी और प्राइवेट दफातर और मार्केट खुल गए हैं, ताहम मेट्रो, रेलवे और लोकल ट्रेनें नहीं चलने की वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर गर्चे पब्लिक और प्राइवेट बसें दौड़ने लगी हैं, मगर मुआशरती फासले की लाजिमी शर्त की वजह से बस स्टैंड पर लंबी कतारें कलकत्ता शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह नजर आई हैं। प्राइवेट बसों के मालिकान की यकीन दहानी के बावजूद सड़कों पर प्राइवेट बसें बड़ी तादाद में नहीं उतरी हैं। इसी दफे पर एक और सुर्खी इस तरह है, बंधुआ मजदूरी मामला, दरखास्त गुजार को कौमी इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू करने की हिदायत। मौसूला तफसील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज बिहार और उत्तर प्रदेश में 3 ईंट भट्टों से कम 187 बंधुआ मजदूरों की आजादी और बाजाबातकारी के मामले में दरखास्त गुजार को कौमी इंसानी हुकूक कमीशन NHRC से रुजू करने की हिदायत दी। जस्टिस L नागेश्वर राव के सरबराही वाली बेंच ने समाजी कारकुन जाहिद हुसैन की दरखास्त निपटाते हुए उन्हें NHRC जाने की हिदायत दी। अदालत उस्मान ने कहा कि NHRC मुल्क भर में बंधुआ मजदूरों के तहफ्फुज और उनकी बाजाबातकारी के लिए मखसूस हिदायत जारी कर सकता है। मौलाना रफीक अहमद कासिमी और कारी अनवर जामई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की खबर भी सफा के झैल हिस्से में शाये हुई है। खबर के मुताबिक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दिल्ली प्रदेश के सदर मौलाना निसार अहमद नक्शबंदी ने जमात इस्लामी हिंद के साबिक सेक्रेटरी शोबे इस्लाह मुआशरा मौलाना रफीक अहमद कासिमी और कारी अनवर जामई मोहतमिम मदरसा राह निजात सुंदर नगरी दिल्ली जमीयत उलमा के हिंद के सेक्रेटरी के इंतकाल पुरमलाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि इन दोनों मिल्ली कायद के इंतकाल से उम्मत मुस्लिमा को खसारे का सामना करना पड़ा है और एक खला पैदा हो गया है। अल्लाह ताला इन दोनों रहनुमाओं का मिल्लत को नेमुल बदल अता फरमाए। ये दोनों रहनुमा मिल्लत के लिए बेशकीमती सरमाए की हैसियत रखते थे। सफा आखिर की पहली सुर्खी में साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश मायावती का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरहदी तनाज़े में मरकज सभी पार्टियों को एतमाद मिले। खबर के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चीन और नेपाल के साथ सरहदी तनाज़े को मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए संगीन खतरा करार देते हुए इस मसले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सियासत से बाज रहने और मरकजी हुकूमत को सभी पार्टियों को एतमाद में लेने का मशवरा दिया है। मोहतरमा मायावती ने मंगल को यहाँ अपने ट्वीट में लिखा कि यह बड़ी बदकिस्मती की बात है जब मुल्क की आवाम को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है, ऐसे वक्त में भी खासकर बीजेपी और कांग्रेस उसके पसे पर्दा सतही सियासत कर रही हैं और अब चीन के साथ सरहदी तनाज़े के ज़िम्न में भी उनमें आपसी इल्जामात का सिलसिला जारी है जो मुल्की मफाद में कतई मुनासिब नहीं है। इसी खबर के बॉक्स में मायावती का यह बयान भी है जिसमें कहा गया है कि दलितों के इस्तेहसाल को हुकूमत संजीदगी से ले। खबर के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा और बिजनौर में दलित लोगों पर मुबैना तौर पर हो रहे मजालिम पर तशवीश जाहिर करते हुए मंगल को कहा कि कसूरवारों के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इन मामलात को निहायत संजीदगी से लेकर मुतासरा कुंबे की मुकम्मल मदद करे और उनके कसूरवारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। पेशानी की बाई जानिब की सुर्खी इस
तरह है, इलाज की कमी की वजह से गरीब मरीजों की मौत अफसोसनाक। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अस्पतालों में इलाज की कमी की वजह से मरीजों की मौत पर हुकूमत को घेरा है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया ने कहा कि हुकूमत जहाज, माल, होटल और रेस्तरां खोल सकती है तो जनरल ओपीडी क्यों नहीं? सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद होने की वजह से निजी अस्पताल वाले लूट रहे हैं। मिस्टर भदौरिया ने कहा कि दिल, गुर्दे, जिगर और दीगर अमराज का ऐलान होने से मरीजों की मुसलसल मौत हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि गरीब आवाम के तई हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव के बयान को भी सफा आखिर पर नुमाया जगह दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना बहरान में कारकुनान मुतासिरा अफराद की मदद करें। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने आज वीडियो कॉलिंग सिस्टम के जरिए रियासत में अपने सीनियर कारकुनों और रहनुमाओं से बातचीत की और इलाकाई सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। मिस्टर अखिलेश यादव ने अपने कारकुनों से कहा कि वो 2022 के इंतखाबात की तैयारियों को हल्के में न लें, तंजीम को बूथ सतह पर मजबूत बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कारकुनान कोरोना मुतासिरीन की इमदाद करें। मजहबी मकामात पर शर्तों की पाबंदी हुकूमत की फासिद ज़हनियत का हिस्सा। इस सुर्खी के तहत खबर में है कि पीस एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर मुर्तजा अली ने मजहबी मकामात पर शर्तों की पाबंदी पर सख्त एतराज जताते हुए कहा है कि यह हुकूमत की फासिद ज़हनियत का हिस्सा है। मिस्टर मुर्तजा अली ने कहा कि जब हमारे मुल्क में कोरोना के 400 केस थे तब पूरे मुल्क में एक साथ लॉकडाउन कर दिया गया और आज पूरे मुल्क में 4 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने मौलाना कल्ब जवाद के कदम की तारीफ करते हुए कहा कि छूट हो तो पूरी तरह हो, नहीं तो न हो। यह कहकर उन्होंने कोरोना वबा खत्म होने तक आसिफी मस्जिद में जुमा की नमाज पर खुद रोक लगा रखी है। तकमील तिब कॉलेज के जरिए कोरोना वायरस से बचने का जोशांदा तैयार किए जाने की खबर भी सफ़े आखिर पर जली सुर्खी में है। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तकमील तिब कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कवी ने मीडिया एहलकारों को बताया कि जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है वो बहुत ही तशवीशनाक है। डॉक्टर अब्दुल कवी ने बताया कि कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने से इस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से हमें जो एडवाइजरी मिली है उसी के तहत यूनानी कॉलेज ने यूनानी जोशांदा तैयार किया है, जिसे पीने से कोरोना वायरस की रोकथाम में काफी हद तक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दूध या पानी के साथ हल्दी पाउडर पीने से भी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होता है। इसके अलावा यूपी में कोरोना मुतासिरा मरीजों की तादाद 10,989 तक पहुंचने इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के रुकन मोहम्मद जाहिद के सीनियर सहाफी सुशील दुबे की बेटी को 1 यूनिट खून देकर उनकी जान बचाने, गोमती नदी से एक नौजवान की लाश बरामद होने और संगीत नाटक अकादमी में ऑनलाइन मेकअप वर्कशॉप और रियासती सतह पर मौसीकी मुकाबले आज से शुरू होने की खबरें भी सफा आखिर पर मौजूद हैं। नाजरीन आदाब, अवधरामा के सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और तलखीस के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। गुस्से की ये आग कब बुझेगी के उन्वान से अखबार अपने इदारे में लिखता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर, अमीर और मुहज़्ज़ब मुल्क कहा जाता है। वो इक़्तिसादी और साइंसी तरक्कियां भी हासिल कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी नस्ली तफरीक की जड़ें वहां बरसों से गहराई तक पेवस्त हैं और सियाफाम अक़लियतों को वहां का कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा है। जबकि बराक ओबामा खुद भी सियाफाम थे, लेकिन वो भी 2 मरतबा अमेरिका के सदर रहने के बावजूद नस्ली तफरीक को खत्म नहीं करवा सके। इदारती सतह पर डॉक्टर सलीम खान का मजमून अमेरिका आमने सामने जब हो गए महमूद अयाज शाये हुआ, जिसमें आप लिखते हैं कि बराक ओबामा के बाद रौनक ज़दा नस्ल परस्त डोनाल्ड ने इक़्तिदार संभाला और उसके बाद क्या हालत हुई होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन यह मसला फर्द का नहीं बल्कि वहां राज निज़ाम सियासत का है। इंसानी तफरीक और इम्तियाज को खत्म करना कौम परस्ती की बुनियाद पर कायम व दायम ला मजहबी सरमायादाराना जमहूरियत के बस की बात नहीं है कि वो महमूद अयाज को एक ही सफ में खड़ा कर सके। इससे मुताल्लिक शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने जो पेशीन गोई की थी उसका नजारा अमेरिका जैसी अजीम तरीन जमहूरियत में बसरो चश्म किया जा सकता है, क्योंकि खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमजोर का घर होता है गारत तो इसी से। कैसर महमूद इराकी का मजमून कुछ तो ऐसी खता है जिससे शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि अपने कल्ब रूह में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कूट कूट कर भर लो। ये जो झटका इस वायरस की शक्ल में पूरी दुनिया को लगा है, ये तंबीह है कि अब भी वक्त है, आखिरत के लिए ज़्यादा राह इकट्ठा कर लो और अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में लग जाओ, जिसका समरा वो जन्नत है जिसकी आसाइश दुनिया के बड़े से बड़े सुल्तान को मैसर नहीं है।
इसी सफे पर तीसरा और आखिरी मजमून डॉक्टर रामेश्वर मिश्र का है, जिसका उन्वान है सिसकते मुल्क में ये कैसी हुसूलियाबियों का एक साल। फाजिल मजमून निगार लिखते हैं कि आज मौजूदा तनाजुर में भारत जैसे मुल्क में जो हालात गुज़श्ता 8 माह से पैदा हुए हैं, ऐसे में उन हकायक की बिना पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा मुल्क मुसीबतों और जद्दोजहद से घिरा सिसकता मुल्क बन गया है। ऐसे पुरदर्द हालात में हुसूलियाबियों की बात करना कहां तक दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी के जरिए हुकूमत के 1 साल पूरे होने पर पूरे दमखम के साथ इस मुसीबत की घड़ी में वर्चुअल रैलियों के तवस्सुत से अपनी हुसूलियाबियों को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। हुकूमत के जरिए ऐसे वक्त में लोगों के दर्द को कम करने और खतरनाक सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए नई स्कीमों के अमल दरामद का काम करना चाहिए, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी के साथ साथ किसानों, तलबा, मुहाजिरों के मफाद का अमल दरामद हो। यही मौजूदा दौर का नसबुल ऐन है और यही लोगों के तई सच्ची हमदर्दी होगी। अदबी सफ़े पर डॉक्टर मेराजुल हक बर्क का मजमून डॉक्टर इमाम आजम फिक्र फन के आईने में शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि इंसानों के जिम्मे गफीर में कुदरत कुछ ऐसे तख्लीकी सांचे भी तैयार करती है जिनमें ढले हुए इंसान के जहनी ताने बाने अजहद, हसास और नाजुक, फ़आल और मुतहर्रिक और गैर मामूली तौर पर बाशऊर होते हैं। वो जबरदस्त कुव्वत मुतखय्यला और कुव्वत दरका के हामिल होते हैं। ऐसे इंसानों का जाविया फिक्र नजर मुनफरिद और मुमताज होता है। जिद्दत पसंदी उनकी शान और रिवायत से बगावत उनका नारा होता है। उन्हें नई शाहराह और नई मंजिल की तलाश होती है, यानी मंजिल पर वो पहुंचकर मंजिल को ढूंढते हैं कि मिस्दाक होते हैं। वो फिक्र नजर में इनकलाब पैदा करके इल्म और फन का नया जहां आबाद करते हैं और उनकी हैसियत जमाना साज की होती है। डॉक्टर इमाम आजम की ताबनाक और पुरवकार शख्सियत इस अम्र की गम्माज है कि मुंदरजा बाला सारी सिफात उनकी जात में मौजूद हैं। उनकी फिक्री व फनी शख्सियत की हमागिरी और हमजहती ऐलान करती सुनाई देती है। दूसरा मजमून मोहम्मद यूसुफ राना मुंबई का है, जिसका उन्वान है बूढ़े शजर की शादाबी सईद आजमी। इसमें साहिब कलम लिखते हैं कि सईद आजमी ने रिवायती शायरी के जरिए अपने वरसे कदीम तमद्दुन के दिए जलाए रखने का एक अहम फरीजा अपनी शायरी के जरिए रवा रखा है। जनाब सईद आजमी अपनी उम्र अजीज की 84वीं बहार देख रहे हैं। माशाअल्लाह वो आज भी तंदुरुस्त और सेहतमंद है। उन्हें देखकर बूढ़े दरख्त की शादाबी और उसकी छांव में थके मांदे बैठे मुसाफिरों, हंसते खेलते बच्चों जैसा मंजर याद आ जाता है, क्योंकि सईद आजमी की हल्का तलम्बुस की तादाद खासी है और ये बूढ़ा दरख्त अपनी मुकम्मल शादाबी के साथ अपनी इल्मी फन्नी फैज़याबी से उन्हें मामूर कर रहा है। इसके अलावा अदबी सफ़े पर राशिद अज़मी कश्मीर, वासिफ फारूकी लखनऊ, फरीदा अंजुम पटना बिहार की गजलें और नाहिद वहीद कराची की नज्म चरिंद परिंद की बद्दुआ भी अदबी सफ़े की जीनत है। नाज़रीन, मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर सबसे पहले हकीम नाजिश एहतिशाम आज़मी का मजमून बाजमात नमाज पढ़े मगर फिरका परस्तों से होशियार रहकर शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि शरीयत इस्लामी में अगरचे सफ़ों में इत्तिसाल पर जोर दिया गया है, मगर क्या कोई अजदहे, शेर या जहरीले सांप के बगल में खड़ा होकर इबादत करने का हौसला कर सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा हरगिज नहीं किया जा सकता। लिहाजा कोरोना वायरस जो अभी लाइलाज मरज है और जिसकी वजह से दुनिया भर में यौमिया हजारों अफराद लुक़्मा अजल बन रहे हैं, क्या वक्त का कोई मुफ्ती ये यकीन दिला सकता है कि सफों में मिल मिलकर खड़े हो तुम्हें कोरोना नहीं होगा? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये कोई हलाल हराम या ईमान के जाये हो जाने जैसा मसला नहीं है कि जज्बात की रौ में बहने की गलती की जाए और बाद में हुकूमत और फिस्ताई कुव्वतों और पुलिस इंतजामिया के इताब का शिकार भी हमें ही बनना पड़े। लिहाजा इस वक्त किसी भी सूरत में मसलहत अंगेजी और हालात की संगीनी से लापरवाही बरतना हमारे लिए सूदमंद नहीं होगा। दूसरा मजमून मोहम्मद उवैस संभली का दुआए मगफरत की दरखास्त है के उन्वान से है। आप लिखते हैं कि हमारे सबसे बड़े मामू साहब मौलाना अतीकुर रहमान संभली अपनी सेहत की खराबी के सबब मुआलिजीन के मशवरे पर लंदन जाने लगे तो उनके साथ मामी साहिबा भी चली गई। ये सब मेरी पैदाइश के फौरन बाद की बातें हैं जिनको मैंने अपने बड़ों से सुना है। यही सबब है कि होश संभालने के बाद से ही हमने अपनी सबसे बड़ी मामी साहिबा को लंदन वाली मामी कहकर पुकारा। मामी साहिबा हमारे छोटे नाना जान हकीम मोहम्मद अहसन संभल की सबसे बड़ी बेटी थी। अपने वालिद की तरह खूबसूरत और सीरत भी अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें बिल्कुल वैसी ही मिली थी। मामी साहिबा को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था। सौम व सलात की पाबंदी के बारे में क्या बताया जाए, उनका ज्यादातर वक्त मुसल्ले पर गुजरता था। मजमून निगार के मुताबिक 7 जून 2020 को उनका इंतकाल हो गया और लॉकडाउन की वजह से उनकी तदफीन दिल्ली में ही की गई। वो लिखते हैं कि क़ारीन से मरहूमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला मामी साहिबा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को मुनव्वर कर दे और उन्हें क़ुर्ब आला का मकाम अता फरमाए। आमीन।
मुफ्ती मोहम्मद सलीम मिसबाही का मजमून बच्चों की तरबियत करने के रहनुमा उसूल इस सफ़े का तीसरा और आखिरी मजमून है। आप लिखते हैं कि 13-14 साल के हों तो लड़कों को उनके वालिद और बच्चियों को उनकी वालिदा सूरह यूसुफ और सूरह नूर की तफसीर समझाएं या किसी आलिम या आलिमा से पढ़वाएं कि किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद खूबसूरत और नौजवान होते हुए एक बेमिसाल हुस्न की मालिक औरत की तरगीब पर भटके नहीं, बदले में अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में शुमार हुए। इस तरह बच्चे बच्चियां इंशाअल्लाह ताला अपनी पाकदामनी को मामूली चीज नहीं समझेंगे और अपनी इफ्फत और पाकदामनी की खूब हिफाजत करेंगे। इसके अलावा इमाम जाफर की शान में सज्जाद लखनवी का मनकबती कलाम भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है, जिसका मतला और कुछ शेर यूं है। निजात का जो सफीना है जाफर सादिक, खुदा कसम तेरा कुंबा है जाफर सादिक, उलूम का जो खजीना है जाफर सादिक, ये सच है वो तेरा सीना है जाफर सादिक, तहारतों का जो शजरा है अहले इल्मो खरत, उसी की शाख का समरा है जाफर सादिक, हर एक इल्म कलीमो हर एक इल्म कदीमो जदीद की दौलत, तेरे उलूम का सदका है जाफर सादिक, मदीना इल्म का है ज़ाते मुरसले आज़म, मदीना इल्म का है ज़ाते मुरसले आज़म, हुसूल इल्म का जीना है जाफर सादिक। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम, कम फीस और 100% रिजल्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर, मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी, एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संत प्रकाश गौतम जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना वायरस संक्रमण से होने के बाद पीजीआई लखनऊ में इलाज करा रहे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की मंगलवार को दोपहर में निधन हो गया। वो करीब 58 वर्ष के थे। स्वास्थ्य विभाग में प्रथम श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी के प्रदेश में पहली मौत हुई है। अब तक कोरोना ने चिकित्सक तक की ही जान ली थी। सिद्धार्थनगर के बांसी में राजा रतन सेन डिग्री कॉलेज बांसी के बीएड विभाग के तमाम छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रशासन पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए एसडीएम बांसी को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। बीएड छात्रा अध्यापक से अवैध वसूली के संबंध में रतन सेन डिग्री कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर के उन विद्यार्थियों बीएड क्लास में प्रशिक्षणाधीन है, इस वर्ष कुछ दिन उपस्थित नहीं रही, जिसके कारण छात्र छात्राओं विद्यालय द्वारा परीक्षा का फॉर्म के नाम पर छात्र छात्राओं से 30-30 कुर्सी तथा 500 रुपए नकदी की मांग कर रहे हैं। डेयरी उद्योग पर कोविड-19 का प्रभाव विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार वार्नर कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय शुवार्ट्स में आयोजित किया गया। वेबिनार में आईआईटी कानपुर, एनआईटी, एनडीआरआई, आईसीआर, एफसीआई, एफएसएसआई, मदर डेयरी, अमूल जैसे प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों, आहार विशेषज्ञों, उद्यमियों, किसानों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं व इंडोनेशिया, सऊदी अरब, भूटान, नेपाल आदि के विशेषज्ञों सहित लगभग 2200 प्रतिभागियों ने भाग किया। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी गोरखपुर से मुलाकात की और कहा कि बच्चों के स्कूलों की फीस माफी और बिजली के बिल का भुगतान करने को लेकर जिलाधिकारी महोदय से राहुल गुप्ता ने कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी ने पूरे लखनऊ क्षेत्र के सभी स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ कर दी है। उसी के आधार पर गोरखपुर के आसपास सभी विद्यालयों की फीस भी माफ कर दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन में प्रत्येक व्यक्ति की कमाई खत्म हो गई है। लखीमपुर खीरी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विकास कार्यों के विभागवार, मदवार एवं बिंदुवार गहन समीक्षा की और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि लॉकडाउन के उपरांत विकास कार्यों की यह प्रथम एवं अति महत्वपूर्ण बैठक है। जिन विभागों में विकास कार्य अधूरे होने के साथ साथ बजट भी अवशेष है, ऐसे सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देवबंद में शासन द्वारा नामित सभासद गजराज राणा और दीपक त्यागी को मंगलवार को नगर पालिका सभागार में एसडीएम देवेंद्र पांडे ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामित सभासदों को पगड़ी व पटका पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। अयोध्या नगर निगम द्वारा टैक्सी स्टैंड की बढ़ी हुई शुल्क वसूली के खिलाफ 9 जून 2020 को आदर्श टैक्सी एसोसिएशन फैजाबाद के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में अयोध्या नगर निगम के महापौर को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से नगर निगम द्वारा टैक्सी स्टैंड के नाम पर हो रही 60 रुपए की वसूली को तत्काल बंद करने की मांग की गई और विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का मौन विरोध किया गया। इस मौन विरोध में सभी विद्युत कर्मियों ने मांग किया कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लिया जाए। विद्युत विभाग के नियमित कर्मचारियों व संविदा कार्मिकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। इसके साथ ही संविदा कार्मिकों को नियमित कर्मचारी के बराबर तथा संविदा श्रमिक को 18,000 रुपए वेतन दिए जाने की मांग की। अलीगढ़ में मंगलवार को विकास भवन के नाजिर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खास बात यह है कि विकास भवन में डीआरडीए के जेई एवं कर्मचारी नेता की रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आ चुकी है। विकास भवन के 2 लोगों की रिपोर्ट की पॉजिटिव आने से अन्य कर्मचारी व अधिकारी
चिंतित हैं। अलीगढ़ में अब तक 219 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, इनमें 18 की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ में बुढ़ावे हिसामुद्दीनपुर गांव स्थित 2 गुमटियों में अज्ञात कारणों से देर रात आग लग गई। इससे दोनों में रखे सामान के साथ ही गुमटियां भी जलकर राख हो गई। चक बुढ़ावे गांव निवासी सुरेंद्र राजभर की सड़क किनारे गुमटी में किराने की दुकान थी। बगल में ही बुढ़ावे हिसामुद्दीनपुर गांव निवासी राम प्रसाद शर्मा की गुमटी में सैलून थी। रात लगभग 2 बजे आग की लपटों को देख ग्रामीणों ने शोर मचाया तो जानकारी हुई। पीड़ित सुरेंद्र ने 60,000 व राम प्रसाद ने 40,000 की क्षति होना बताया है। कानपुर में पास्टर्स एसोसिएशन की एक विशेष बैठक पास्टर्स एसोसिएशन के कार्यालय 13 ब्लॉक गोविंद नगर चर्च में हुई, जिसमें शासन और प्रशासन के द्वारा धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जो निर्णय लिया गया था उसमें एक विषय पर विचार विमर्श करने के लिए शहर के सभी प्रमुख चर्चों के पादरी इस बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने आपस में बातचीत कर इस बात का निर्णय लिया कि हम लोग अपने चर्चों को खोलने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को मानेंगे व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लेकिन प्रशासन ने जो चर्च में केवल 5 लोगों के आने की जो अनुमति दी है वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सरकार से 30 लोगों के चर्च में आने की इजाजत मांगने की। हर खित्ते उर्दू से हमको नजर आता है, दुनियाए सहाफत का मीनार अवधनामा।